Thank you for joining us today on Umeed Healing. This year's World Mental Health Day, जो कि आज है 10th October, comes at a time when our daily lives have changed considerably as a result of the COVID-19 pandemic. The past months have brought many challenges for each one of us, which range from being concerned about job security, our future, that of our children, being fearful for the health of ourselves and our loved ones, being worried about going to work and bringing in COVID into our homes. I'm sure these are just some of the worries that you would have gone through today. While mental health is an issue that we should generally be mindful of, the current situation seems to have aggravated it even more. Greater social isolation, anxiousness about our future, and those of our children, managing the grief of losing a loved one, sometimes without being able to say goodbye, has heightened the need for vigilance on mental health. और हमें vigilant रहना पड़ेगा. Keeping this in mind today on World Mental Health Day, we speak to Saiba Sethi, counseling psychologist and founder of Umeed Healing, to help us understand more about mental health and how to manage it. So let's add her on. Hello, Saiba, how are you doing? Hello, Tarunjit. How are you? I'm good. Saiba, before we start today's topic, could you help our viewers understand a little more about yourself? See, I'm a trained counseling psychologist. I've done my master's in clinical psychology. I have done my post graduation counseling from Annamala University. मैंने काउंसलिंग एंड गाइडेंस इग्नू से भी किया है और मेरी इंटर्नशिप हुई है डॉक्टर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर गौतम के अंडर और मैं काफ़ी स्कूल से टाई अप भी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस पास्ट डिकेट्स आई थिंक 7 to 8 years से मैं इस फील्ड में हूँ एंड मेरी डीलिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स में ज़्यादा होती है and this year I have started my own I've started Umeed Healing and I'm the founder of this. मेरा ये उम्मीद हीलिंग खोलने का मोटिव यही था that to spread the awareness of mental health. लोगों को काफी नीड है, they need someone to talk. तो मेरा मेन इसी में ही रहा है शुरू से. तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं खुद का ही अपना कुछ खोलूं and give a little bit contribution of this. बहुत बढ़िया. लेकिन आप पहले हमें ये बताएं कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? Mental health, see, it involves your emotional, your psychological and social well-being. आप क्या सोचते हो, what you think, how you feel and how you act अपने डे टू डे एक्टिविटीज में. अगर आज मैं आपसे पूछूं तरुण जी दैट हाउ आर यू, तो आप मुझे क्या जवाब देंगी? लोग हमेशा यही जवाब देते हैं, आई एम फाइन, आई एम गुड. या आई एम फाइन. Exactly. But if I ask you, how are you feeling today, Tarunjit? I guess I'm fine. Only fine? I'm good. Okay. So the good, or if I say that how am I feeling today? I'm feeling happy. So the happy is the emotion, right? If I ask you that, what are you thinking about this live session right now? I'm feeling good about it. You're feeling good. And I am thinking that I hope most of the people are watching a live session. So this is my thought process, and your thought process is only good. So you know how we feel right now, what is our emotions, and how we act according to it. That is what mental health. Okay. And why is it so important? See, mental health plays a very vital role in our life. Basically, if you see, I'll explain you with two examples. When somebody meets with an accident, right? तो हम लोग को जब कोई बॉडी इंजरी हो Right. जाती है तो हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं. लेकिन Right. अगर हम लो फील करते हैं या हम लिटिल बिट डिप्रेस्ड फील करते हैं, सैड फील करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो कोई ये तो नहीं बोलता कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिकॉज वो इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है, राइट? हमें Right. यही चीज
लोगों को समझानी है कि द वे यू गिव इम्पोर्टेंस टू फिजिकल पार्ट, उसी तरह मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. And let me Right. tell you that mental health is all connected with your physical health also. How? How I'll explain you. It is like अगर आप अपने वर्क प्लेस में हो, ठीक है, आपको बॉस ने बोला एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है, आप बहुत स्ट्रेस्ड अप हो जाते हो, अरे हमें तो कैसे भी करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और बेस्ट से बेस्ट देना है. लेकिन what you start doing it, you start thinking more and more कि मुझे कैसे भी करके अपना दी बेस्ट देना है. So your thought process is going on, and with that thought process you start taking stress and tension. तो आपका कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है. उस मेंटल स्ट्रेस से क्या हो रहा है, आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लग गई, लाइक हेडेक, और यू स्टार्ट हैविंग बॉडी पेन. ये सारी चीजें आपकी फिजिकल सिम्टम्स भी दिखने लग जाते हैं. So Right. what I'm trying to get that your mental health is connected with your physical health too, and we need to balance our physical and mental health both. So हमें it's very disheartening also that people don't give the importance of mental health. They take it, the stigma is still there, the negative stigma, कि नहीं, अगर हम किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हमारा एक टैग लग जाएगा. टैग क्या, अरे क्या ये पागल है. तो that stigma is still there, and I've been working from last 8 years and I'm trying my level best to remove this stigma. I think even all the psychologists and the psychiatrists who are in this field, they are still working on it कि नहीं, going to a psychologist or a psychiatrist is nothing bad. We have to be positive. Correct. Before we get into that, Saiba, आप थोड़ा हमें help me understand the distinction between what is mental illness. Is it a disease or is it an illness? How do you define that? Is it a disorder? Sorry, is it a disorder or an illness? How do you distinguish between them? Right. Before that, I'll answer your question. The first one, what is mental illness? Mental illness, it includes again, the emotion part, the thinking part, and your behavior. How you act according to it, right? That is mental illness. आपकी कोई भी social environment में क्या आपका behavior है, आपकी family में क्या behavior है, आप कैसे सोचते हो, आप क्या करते हो, ये सारी चीजें mental illness में आ जाती हैं. But मेंटल इलनेस एक डिजीज नहीं है, इसका साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी है डिसऑर्डर. व्हाई यू कॉल इट अ डिसऑर्डर? बिकॉज अगर आपने देखा होगा, हमारी जो भी फिजिकल या कोई भी मेंटल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या कोई भी चीज होती है, वो फ्लो में होती है. लेकिन जब वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो जाती है, मैल फंक्शनिंग करना ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है. राइट, हम हर चीज ऑर्डर में कर रहे हैं, तो एकदम से जब थोड़ा सा डिस्टर्बेंट लाइफ हो जाता है, देन इट गेट्स डिसऑर्डर्ड. सो इसीलिए साइकेट्रिक टर्म में वी कॉल इट डिसऑर्डर, नॉट अ डिजीज. इवन तरुणजीत, बहुत लोग जैसे आपने मुझसे पूछा ये मेंटल इलनेस क्या है, बहुत लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम क्या ये डिजीज है और क्या इसके वजह से हमें हो सकता है क्या. ठीक है, मेरे काफी क्लाइंट्स मुझसे ये चीज पूछते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, लाइक डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप उसके साथ बैठे हो तो ये आपको भी होने लग जाएगा. इट इज नॉट एट ऑल लाइक दिस. तो ये एक मिथ है, ठीक है, इट इज नॉट द रियलिटी. इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक दैट प्रॉब्लम, और आप सामने वाले के साथ कैसे डील कर रहे हो. तो रिसेंट इयर्स में हम मेंटल हेल्थ के बारे में काफी सुन रहे हैं, राइट? तो जैसे हमारे काफी एल्डर्स कहते हैं ये आजकल के बच्चों के न्यू फैंगल डिजीजेस हैं, हमारे जमाने में तो होता नहीं था. तो क्या ये लाइफस्टाइल की वजह से डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, या जस्ट बिकॉज अभी हम लोग काफी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग इसके बारे में आजकल ज्यादा सुन रहे हैं?
इसके दोनों है। अगर देखा जाए पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी, बट क्योंकि ये हाईलाइट नहीं होता था, अब लोगों में अवेयरनेस आने लग गई है, इसलिए ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं। लाइफस्टाइल इज अ वन पार्ट ऑफ इट, यू नो, इट्स वन फैक्टर ऑफ मेंटल इलनेस। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हेन यू गो टू डॉक्टर, उनका पहला क्वेश्चन क्या होता है, कभी आपने नोट किया है, अगर आप गए हो कभी, तो वो ये पूछते हैं कि आपको भूख लगती है, क्या आपको नींद अच्छी आती है? Their first Hmm. two questions is this. Why? Because it is connected with your lifestyle. And Right. lifestyle really matters. How you eat, how you get up, what you do. ये बहुत करता है. It is one factor of getting mental illness. तो इसीलिए हमें Right. lifestyle में भी बहुत workout करना चाहिए. ओके, तो ये जैसे आपने सही तरीके से बताया कि इट्स अ डिसऑर्डर, राइट? अगर ये ऑर्डर बिगड़ गया है तो डिसऑर्डर हुआ। अगर ये ऑर्डर आप ठीक कर दो, ठीक है, देन दैट इलनेस और दैट डिसऑर्डर इज क्योर्ड इन दैट सेंस, राइट? Yes. Yes. अगर somebody recognizes, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेंटल डिसऑर्डर के क्या साइंस होते हैं एंड हाउ डज वन रिकॉग्नाइज इट? अगर तो से वन रिकॉग्नाइजेस इट इन वन सेल्फ, तो क्या करना चाहिए? और अगर मेरे किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल में मुझे कोई दिखे कि दिस पर्सन कुड पॉसिबली हैव अ मेंटल डिसऑर्डर और नीड्स Yes. हेल्प, हाउ डू Yes. यू राइट, व्हाट डू यू डू? आई नो बड़ा लंबा क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया मैंने, so let's मैं break it down. हाँ, मैं one by one आपको बताती हूँ. First is, what are the signs? How are we going to recognize these signs? If you are upset, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक्सेसिव मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यू आर गेटिंग टू मच ऑफ इरिटेटेड, ठीक है, आपको एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, आप सबसे इसमें खास बात है सोशल विथड्रॉल, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, एंड योर ईटिंग हैबिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपके इसमें से कोई भी साइंस या सिम्टम्स आपको दिखते हैं, द पॉइंट इज मोर देन 2 weeks. अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मोर देन 2 weeks दिख रहे हैं, देन यू नीड टू कंसल्ट अ मेंटल एक्सपर्ट. सेकेंड क्वेश्चन आपका जो था कि अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर है, कैसे है, ये तो साइंस से पता चल गया, लेकिन इनसाइड डेवलप होना बहुत जरूरी है. कई लोगों को लगता है कि अरे ये तो सबके साथ ही होता है, ये तो हमारे साथ भी होता तो सबके साथ ही है. एक सैचुरेटेड पॉइंट भी होता है कि कितने टाइम तक हो रहा है. तो 2 weeks से अगर ज्यादा आपको ये साइंस दिख रहे हैं, तब आपको इमीडिएटली एक साइकेट्रिस्ट या अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है. और तीसरा क्वेश्चन जो आपका था कि अगर फैमिली मेंबर्स में हो जाए, तो फैमिली मेंबर्स में भी यही है कि उनका इनसाइट डेवलप्ड है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत बार मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि मैम मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम्स है. तो मैंने बोला क्या आपका बच्चा ये चीज एक्सेप्ट करता है, डज ही हैव दैट इनसाइट इन हिमसेल्फ? बोले नहीं मैम, उसको तो नहीं है, और वो काउंसलर के पास आना भी नहीं चाहता. तो मैंने बोला मैम कि आपको यू हैव टू कन्विंस हिम, क्योंकि एक बार काउंसलर्स के पास लाना ही आजकल एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका है. तो वो इनसाइट जब तक डेवलप ही नहीं है, तो वो काउंसलर्स के पास आते भी नहीं है. तो पेरेंट्स कैसे भी करके जब लाते हैं, देन वी डिस्कस. हमारा ये काम होता है कि वो इनसाइट उनके अंदर डेवलप करवाना, उनका रिकॉग्निशन करवाना. आई कांट हियर यू. What do you mean when you say insights develop होना? इनसाइट डेवलप होना मतलब कि उनको खुद को पहचान होना कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हमारे अंदर ये सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं. ये मैंने क्या बोला कि कई बार बोलते हैं अरे चिड़चिड़ापन किसको नहीं होता, फियर किसको नहीं है, एंजाइटी तो सबको होती है, मूड स्विंग किसके नहीं होते. जनरली एवरी ह्यूमन बीइंग हैव दीज इमोशंस, ये होते रहते हैं, सबके साथ होते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सबके साथ. लेकिन कितने ड्यूरेशन तक हो रहा है, इज इट फॉर 1 week, इज इट फॉर 2 weeks और फॉर अ मंथ? इफ इट्स मोर देन 2 weeks, देन यू हैव टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट. लेकिन अगर आप इनसाइट ही डेवलप नहीं है, जब आपको पहचान ही नहीं है, तो आप कैसे जाओगे?
करेक्ट। ये आपने बहुत सही बात बोली, लेकिन हमेशा देखा गया है, जैसे अगर मेरे को खुद के अंदर ये इंसाइट डेवलप हो जाए, आई रिकॉग्नाइज दैट आई एम गोइंग थ्रू समथिंग वेयर आई नीड अ हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर, Yes. it is much easier as compared to convincing a family member or a friend that you need help. How Yes. to approach this subject? Because बहुत लोग मानते नहीं है, ओके, दूसरा अगर मान भी गए तो काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाना मतलब, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट डू दिस, हाउ कैन आई डोंट नीड हेल्प। Hmm. तो ये how do you approach this subject with somebody who you see is going through something that he or she can be helped by a counselor or a therapist? See, here the family members' role is very important. Family members and your near and dear ones, if they are well educated and they are aware of this mental health, they will definitely help the person or the family member to come to a counselor, right? But the point is, when they're coming to a counselor, हम जो sessions लेते हैं, therapy sessions, usually क्या होता है कि 1 या 2 sessions लेते हैं, ठीक है? Right. वो 2 सेशंस के बाद देते हैं कि हम तो वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली फाइन, हमने बात कर ली ना काउंसलर से तो हम ठीक हो गए। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज़ टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन यू नीड एटलीस्ट 5 टू 10 सेशंस। आपको 5 टू 10 सेशंस में ही आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने लगते हैं। हमारे Right. हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आई थिंक ये फेस करते होंगे, वो 2 सेशंस में आते हैं, तीसरे सेशंस में आते ही नहीं हैं। बोलते हैं नहीं मैम तो सिर्फ बातें ही करती रहती है। लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि उस बात करने में भी उनका बेनिफिट है, बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है? वो हम भी उनको सेल्फ रियलाइजेशन करवाना चाहते हैं और थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज हम लोग उनको टास्क देते हैं। कई लोग कर लेते हैं, कई लोग करते ही नहीं हैं। अरे मैम तो हर बार टास्क ही देती हैं, क्या करना है? So, becomes बिल्कुल, little bit difficult, but ठीक है, but the one who wants to really change themselves, वो करते हैं। करते हैं उसके लिए। तो किस सवाल पूछे जाते हैं ऑन अ जनरल बेसिस जब लोग आते हैं आपके पास काउंसलिंग के लिए, किस तरह के सवाल पूछते हैं? देखो सवाल तो हम लोग ज्यादा करते हैं और they tell about their problems and lots of complaining list. If अगर मेरा जैसा ज्यादा मैंने आपको बताया पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ मेरा डीलिंग ज्यादा होता है, तो पहली बात होता है पेरेंट्स सिर्फ कंप्लेंट्स लेके आते हैं बच्चों के, मैम ये सुनता नहीं है, मैम ये फोन बहुत करता है, मैम वो ये करता है, मैम ये हमारी नहीं सुनता है, ओनली कंप्लेंट्स। आई एम श्योर बच्चों के पास भी बड़ी कंप्लेंट्स होती होंगी। हाँ राइट, यू आर राइट। बच्चों के पास पेरेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है कि मम्मी ऐसे करती है, पापा ऐसे करते हैं, मम्मी कुछ ये नहीं करने देती, मम्मी हर बार टोकती है। तो kids have a different complaint list and mothers have a complaint list. So it is our role to ask questions. अब हम questions थोड़ा tricky way में पूछते हैं so that या play way method में पूछते हैं बातों बातों में कि उनको पता भी नहीं चले and they take out their emotions also. So see, in the first session we only try to have a rapport development with the student or with the parent. सेकेंड सेशन में हम थोड़ा सा और फ्रीली बात करते हैं। थर्ड में क्या होता है कि देन वी स्टार्ट विद द एक्टिविटीज। तो ऐसे करते करते हमें 5-6 सेशंस लग जाते हैं। तो यूजुअली सेशंस होते हैं कि हम ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे कंप्लेन्स करते हैं, या जो क्लाइंट होता है वो कंप्लेन्स ही करता है, मुझे ये हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये चीजें होती हैं इसमें। है ना? तो आपको लगता है कि आजकल मेंटल रेजिलियंस जो बोलते हैं, आज वो कम हो गया है? आपने बताया कि खाना पीना लाइफस्टाइल जो है हैज अ इट्स नॉट द ओनली फैक्टर बट इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्टर्स। इज because of the change in lifestyle that we are seeing throughout I think the last couple of generations that have come in, जिसकी वजह से mental resilience कम हो गया है? नहीं, आप ये नहीं बोल सकते हैं। देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, लाइक जैसा आई टोल्ड यू दैट लाइफस्टाइल इज वन पार्ट, राइट? वन इज द सोशल फैक्टर, one is the family factor, one very important your childhood trauma, right? Then is the biological genetics. ये भी फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से मेंटल इलनेस और होने के चांसेस होते हैं। अगर आप देखोगे लोगों में आजकल पीपल आर मोर इनटू न्यूक्लियर फैमिली, दे आर नॉट इनटू जॉइंट फैमिली, दे डोंट इंटरैक्ट एट ऑल।
इवन अब एक और फैक्टर आ गया, टेक्नोलॉजी, ठीक है। Hmm. तो अपने मोबाइल्स में, अपने ऑफिस वर्क्स में, लैपटॉप्स में इतने बिजी रहते हैं, दे डोंट इंटरैक्ट। तो वो बात किससे करेंगे? Right. Until unless they don't talk, they are keeping inside their emotion, तो मेंटल इलनेस होने के चांसेस बढ़ते ही जाएंगे। और अगर आप देखेंगे कि आजकल बच्चों में इमोशनल जो क्वोटिएंट है वो कम है। हमारा Hmm. ये एज अ काउंसलर वी हैव टू नो देम दैट IQ is one part, intelligence is another part, and IQ is another part, and SQ is another. SQ is social quotient. तो Right. हमें ये हर चीज को बैलेंस करना है। ये नहीं कि पेरेंट्स भी बोल रहे हैं मैम ये इंटेलिजेंस, इसको मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने हैं। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द IQ पार्ट। व्हाट अबाउट द इमोशनल? एक्सेप्टेंस इज नॉट देयर, ठीक है, एडजस्टमेंट्स इज नॉट देयर, Mm-hmm. फाइटिंग इज मोर, आर्ग्यूमेंट्स आर मोर। व्हाई? Mm-hmm. क्योंकि बच्चे चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और Right. फिर मोर ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द ईगो पार्ट इज मोर हायर। वो Right. एडजस्टमेंट सीखा ही नहीं है, फॉरगिविंग नहीं सीखा, ठीक है, फॉरगेटिंग नहीं सीखा। क्यों? हम Hmm. लोग स्कूल में मॉरल वैल्यूज भी सिखाते हैं, ठीक है, लाइफ स्किल्स आजकल इवन स्कूल्स ने लाइफ स्किल्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू डेवलप दैट लाइफ स्किल्स इन किड्स। Okay. So let's understand this. What would be your advice to parents today? Okay, to help them understand how to create a higher EQ, SQ, or let's say better mental health for their children. What would be your advice to parents? See, my advice will be that you need to spend time with kids. If you're not spending time with kids, they are going to be lonely. They will be more involved into technology. उनका ये चीजें डेवलप ही नहीं होगा, शेयरिंग नहीं होगा, बॉन्डिंग विद देयर सिबलिंग्स नहीं होगी, जब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे। इसलिए आजकल बीइंग अ काउंसलर हम लोग सब ये बोलते हैं, हमारा क्वेश्चन ये होता है मैम आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ। कई पेरेंट्स तो मैम ये बोलते हैं कि मैम हम तो ऑफिस जाते हैं, रात को लेट तक आते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता। तो जब आपके पास टाइम नहीं है तो आपके बच्चों में डेफिनेटली आपको अपने बच्चे में कुछ ना कुछ बिहेवियरल इश्यूज आपको दिखने लग जाएंगे। दे विल बी मोर एग्रेसिव, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, ठीक है, और टीचर्स के साथ बहस करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लर्निंग प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो ये Hmm. सारी चीज़ें हमें फिर बच्चों में दिखने लग जाती हैं। तो मेरा हमेशा एडवाइस पेरेंट्स को ये रहता है कि मैम प्लीज स्पेंड सम टाइम। एंड फादर का बहुत बड़ा रोल होता है। कई फादर्स भी ये बोलते हैं मैम हम तो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। आई टेल देम कि सर संडे तो होता है, एटलीस्ट वंस इन अ वीक यू कैन गिव टू योर किड। वो वन डे, दैट मोमेंट इज सो प्रेशियस फॉर अ चाइल्ड, यू वोंट इवन नो। वो छोटे छोटे मोमेंट्स ही बच्चों को, वो IQ अपने EQ अपने आप डेवलप होने लग जाएगा बच्चों में। द लविंग, द बॉन्डिंग, द इमोशनल पार्ट, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग व्हेन दे विल सी देयर पेरेंट्स, व्हेन दे विल इंटरैक्ट विद देयर पेरेंट्स। Right. Last question. What is your advice, or let's say, what are your best tips to develop mental wellness or good mental health in adults as well? See, the best thing is do meditation. मैं खुद इसमें देखती हूँ कि मैं खुद एक रेकी मास्टर हूँ, so I do the healing part. I myself do meditation. Even adults can do, kids can do, parents करवा सकते हैं। मैं आर्ट थेरेपी भी करती हूँ। आई हैव दिस बुक आर्टिकल्स, इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर किड्स एज वेल एज फॉर अडल्ट्स ऑल्सो। जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड अप हो जाते हैं वो ये बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी थीम्स हैं, ब्यूटीफुल थीम्स हैं, बटरफ्लाईज एंड कैटरपिलर्स, एंड बहुत अच्छी बुक है। तो ये आप कर सकते हैं। यू इवन हैव दिस वेबसाइट www.articles.in। ये भी एक स्ट्रेस रिलीफ आर्ट थेरेपी बुक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इवन अडल्ट्स कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। दूसरी बात, आप टॉक टू योर फ्रेंड्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज, इंटरैक्ट विथ योर फ्रेंड्स, वीडियो कॉलिंग्स करिए अगर आप नहीं जा पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, योगा एंड वॉकिंग एंड साइकिलिंग। आई थिंक ये लॉकडाउन के टाइम में लोगों ने ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी, और अब कहीं ना कहीं उनको ये इम्पोर्टेंस भी पता चल रहा है कि मेंटल हेल्थ के लिए ये चीजें कितनी जरूरी हैं।
to be yourself calm and peace and go in a right track. तो लोगों ने अगर Right. आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई चीजें, योगा सेशन एंड द मेडिटेशन पार्ट, गो फॉर वॉक, एंड आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग एंड स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज थिंग्स. लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया. इवन मैं तो खुद अपने बच्चों को ये चीजें कराती हूँ. आई टेक देम फॉर साइकिलिंग, आई डू दिस आर्ट थेरेपी. ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं चीजें. तो आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. काफी सारी चीजें जो बता रहे हैं अभी फॉर गुड मेंटल वेलनेस, ये कभी हमारे मम्मी पापा हमें बोला करते थे. राइट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग सब भूल गए हैं ये सारी चीजें. हाँ, अब वो चीजें रही नहीं है. लोग अपने घर में ज्यादा रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, टाइम नहीं है. तो मुझे लग रहा है लोगों का इंडोर ज्यादा है रादर देन आउटडोर. तो ये आउटडोर करवाना, लोगों को गेम्स खिलवाना, मैं खुद अपने बच्चों को बोलती हूँ घर पे नहीं रहना है शाम को, गो आउट एंड प्ले. आपको कैसे भी करके बाहर जाना है खेलने के लिए. कई बार वो ये बोलते हैं, मैम मम्मा कोई आ ही नहीं रहा है खेलने के लिए. मैं कहा कोई बात नहीं, टेक योर साइकिल एंड गो डाउन एंड 4 चक्कर लगा के, बट आपको जाना पड़ेगा. क्योंकि उनका डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट भी उसी तरह से होगा. आप जितना उनको एक्सप्लोर करने दोगे, जितना वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, उनका डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होता है. बिकॉज दे सी, दे इमिटेट, ठीक है, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल. तो उनको जो लोग अच्छे लगेंगे वो वैसा ही करना स्टार्ट कर देंगे. तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी वैसा होने लग जाता है. करेक्ट. घर में बैठ के तो कुछ होने नहीं वाला. सारा दिन टीवी देखते हैं. व्हाट दे आर सीइंग, ओनली कार्टून्स. It's better in the evening time. I would suggest parents to please send kids out. अभी तो चलो लॉकडाउन पीरियड है, कोविड का टाइम है, तो एटलीस्ट प्रिकॉशंस लेके आप बच्चों के साथ नीचे जाइए और साइकिलिंग करिए, वॉकिंग करिए, लेकिन ये एक छोटा सा रोल अपने बच्चों के साथ स्पेंड करिए. Okay. Last question. We're running out of time. I'm sorry. Top 3 tips for somebody who's alone during this lockdown, during this COVID period. Your top 3 tips for that person to be able to practice good mental health. See, one I told you is, first is do breathing exercise. Get up in the morning, do breathing only. You don't have to do anything. Just sit in a fresh air. Okay, start doing breathing exercise for 10 to 15 minutes. Then, if you can do some yoga asanas, that also you can do. Third, listen to music. If you start listening music is also one of the best therapy. So when you listen to music, you get calmed down. And if you want to dance, feel free to dance. Stand in front of mirror and you start dancing. I'm telling you, it really relaxes your body and mind. And you feel so happy because with that music and the dance, it takes out your emotions. You will forget everything. कोई भी जो mental problems होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है. So I think these are the best tips you can try it at home. बहुत बढ़िया. I mean, I think this will be very, very beneficial. Thank you, Saiba, for taking the time out to speak to all of us today on mental health and helping us understand more about it. मुझे लगता है कि हमारे viewers जो हैं आज इसके बारे में उन्होंने बहुत सीखा. तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू तरुण जी, थैंक यू. अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज का दिन हमारे लिए ये बहुत जरूरी था कि ये मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस लोगों में जगाना और स्प्रेड करना. थैंक यू सो मच तरुण जी.